السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں امیم شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں ANN اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ دارالانصار ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے رمضان راشن کی تقسیم، غریبوں کے لیے ایک قدم اور تعاون کی درخواست۔ عادل آباد میں جاری سماعت قرآن برائے خواتین کا دعائی نشست کے ساتھ اختتام۔ عادل آباد کانگریس پارٹی انچارج کندی سرینواس ریڈی کی خدمات بے مثال، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی مناسبت سے دارالانصار ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے شہر کے کچ کنٹری روڈ پر واقع فہد گیسٹ ہاؤس میں مستحق روزہ داروں کے لیے درمیان رمضان راشن تقسیم کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں 1500 روپے مالیت کے راشن پیکیجز 70 غریب اور مستحق افراد میں تقسیم کیے گئے تاکہ وہ رمضان کے دوران اپنے روزے آسانی سے رکھ سکے اور انہیں بنیادی ضروریات کی کمی کا سامنا نہ ہو۔ پروگرام میں سوسائٹی کے سابق صدر قاضی سید ندیم الدین، محمد عبدالوسیم، محمد روشن، حافظ عارف خان، ظفر خان، حافظ عبدالمعیز، عبدالزاہد، رقیب یافعی، اجو حسین، مجاہد ہاشمی، رضوان اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اور اس نیک مقصد کو سراہا۔ سوسائٹی کے سابق صدر قاضی سید ندیم الدین نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دارالانصار ویلفیئر سوسائٹی گزشتہ 10 سالوں سے مختلف سماجی خدمات کے پروگرام انعقاد کر رہی ہے، جن میں سب سے اہم رمضان کے مہینے میں مستحقین میں راشن کی تقسیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوسائٹی ہر سال رمضان میں غریبوں کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ اس مبارک مہینے کے دوران اپنی ضروریات کو پورا کر سکے اور روزہ رکھنے میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ دارالانصار ویلفیئر سوسائٹی صدر حافظ عارف خان نے مزید بتایا کہ سوسائٹی رمضان کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر غریبوں کی مدد کے لیے اقدامات کرتے رہتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گرمیوں میں سوسائٹی کی جانب سے ٹھنڈا پانی کا نظم کیا جاتا ہے اور سردیوں میں کمبل فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ ان موسموں میں بھی مستحق افراد کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے اہل خیر حضرات سے درخواست کی کہ وہ سوسائٹی کے ان پروگراموں میں بھرپور تعاون کریں اور اپنی مدد سے غریبوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے میں سوسائٹی کا ساتھ دیں۔ سوسائٹی کی جانب سے یہ ایک چھوٹا سا قدم تھا، لیکن ان کا مقصد رمضان کے مہینے میں ان مستحق افراد کی ضروریات کو پورا کرنا اور انہیں اس مہینے کی روحانیت میں شریک کرانا تھا۔ اس موقع پر حافظ عبدالمعیز، جناب عبدالوسیم، جناب روشن نے بھی مخاطب کیا۔ آخر میں سوسائٹی کے ذمہ داران نے اہل خیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگراموں میں سوسائٹی کے ساتھ دیں تاکہ معاشرتی بہبود میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ بلانکٹ وغیرہ بھی تقسیم کرتی ہے۔ اور سب سے امپارٹنٹ کام یہ ہے کہ دارالانصار الحمدللہ 9 سال میں 6 بیچز ٹیلرنگ سینٹر کے بھی کر چکے ہیں اور الحمدللہ آئندہ بھی اس کا ارادہ ہے۔ آج الحمدللہ 70 پیکیجز کا ہم نے دارالانصار کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے۔ آج الحمدللہ 70 پیکیجز ان مستحق غریب مسلمانوں کو، روزدار مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری دارالانصار کی ٹیم ہے۔ الحمدللہ ہر موقع پر دارالانصار ویلفیئر سوسائٹی کاموں میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہے اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ دارالانصار ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ رہے اور اس کا تعاون بھی کرے۔ یہ کیونکہ دارالانصار ویلفیئر سوسائٹی کی کوئی ایک بڑی ذرائع نہیں ہے کہ بھئی ان کے پاس بہت مال ہے، یہ کچھ بڑے حضرات لوگوں کا تعاون ہے جن کی وجہ سے ہم راشن دیتے ہیں۔ گرما کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام کرتے ہیں اور جو مسافر بھٹکے ہوئے آتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی ٹکٹ وغیرہ اور کھانے کا بھی دارالانصار ویلفیئر سوسائٹی انتظام کرتی ہے۔ اور الحمدللہ آئندہ بھی بہت سارے کاموں کا رمضان کے بعد فوری انشاءاللہ ہر وارڈ میں یا 2-3 وارڈ میں انشاءاللہ ٹیلرنگ سینٹر انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आदिलाबाद के मारूफ तालीमी इदारे क्रिसेंट कॉलेज व MS नीट एकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद बिलाल सर की निगरानी में गुज़िश्ता 3 सालों से ख़वातीन के लिए कुरान सुनने और कुरान की तफसीर का प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम की रहनुमाई हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी नक्शबंदी फरमा रहे हैं, जो इस रूहानी सफ़र को कामयाबी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस साल ख़वातीन की तादाद में इजाफ़े के बाइस मज़ीद ख़वातीन को इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए उर्दू घर शादी खाने में ये कुरान सुनने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। ये प्रोग्राम 16 मार्च को इतवार के रोज़ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। इस दौरान मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी ने अपने ख़िताब के ज़रिए आसानी ज़िंदगी मसाइल और इनके हल से मुताल्लिक़ बयान किया। इन्होंने बताया कि अल्लाह की हिदायत पर चलकर किस तरह ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना किया जा सकता है और अल्लाह की हिदायत पर अमल करने से किस तरह इंसान को सुकून और कामयाबी मिलती है। प्रोग्राम के अख्तिताम पर खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें हाज़रीन ने दिल की गहराइयों से दुआएं की। ये कम बात नहीं है, ये कुर्बानी है। सबकी तहनीयतें तो हो चुका है। अल्लाह ही इनको बेहतर हदिया अता फरमाए। एक छोटा आपकी खिदमत में हम हाजिर रहें। अल्लाह पाक इस अमल को कबूल फरमाए और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुरान की तफसीर और उसका तर्जुमा पहुँचे रहे, यही मकसद है। अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और बंदे की तौबा से अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, गुनाहों से तौबा करने वाले ये कुरान करीम की तिलावत और तफसीर का सिलसिला तकरीबन 8 साल से जारी है और इसका मकसद ख़वातीन में सही तरीके से कुरान की तिलावत आ जाए और वो भी अच्छी तिलावत करने वाली बन जाए और उसी के साथ साथ समात कुरान के नाम पर जो जमा बाद जगह हो रहे थे और सही पैगाम उन तक पहुँचे, तो उसके लिए मुंतखब आयात की तफसीर करके हकीकी माना में अल्लाह का क्या पैगाम है और हमको इस वक्त क्या करना चाहिए, उसके लिए कुरान करीम की तफसीर का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल दारुल अज़ीज़िया के तहत 10 जगह पर कुरान करीम की तफसीर का सिलसिला जारी रहा है और ये जारी रहेगा। असल मकसद ये इब्तिदा से बचाना है और अल्लाह की वहदानियत और उलूहियत और उसकी रुबूबियत को दिलों में बिठाना है, कुरान की अज़मत को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची आशिकी और सुन्नतों को ज़िंदा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और कुरान की निस्बत से चूँकि दिल बहुत नरम होते हैं तो इधर माइल करना ये मकसूद है। माशाअल्लाह ये उसका मरकज़ी आज का इख्तितामी इजलास है जो उर्दू घर शादी खाना आदिलाबाद में मुनक़िद हुआ। ये इख्तितामी मजलिस है और दुआ भी हो रही है और इसी में हमारे यहाँ बिलाल साहब की सरपरस्ती रही है और मौलाना साद साहब जो हमारे दोस्त हैं और इसी तरीके से उर्दू घर शादी खाने के ज़िम्मेदारान और मीडिया हमारे मुआज़ भाई, ज़ुबैर भाई और जितनी ख़वातीन अंदर के जो ज़िम्मेदारान हैं और हमारे इरफान भाई और उनकी पूरी टीम और जो लोग भी जिन्होंने औरतों में भी जो टीम है पूरी साथ दे रही है, बहुत काबिल मुबारकबाद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ औरतें रोज़ाना पहुँचकर इस्तेफ़ादा करते रही हैं और आज भी दुआ के लिए बड़ी तादाद यहाँ आई है। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि ये इंशाअल्लाह ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంట
చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు आदिलाबाद के उर्दू घर शादी खाने में रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही ख़वातीन के लिए समात कुरान का आगाज़ किया गया था। इतवार के रोज़ अख्ताम पर खुसूसी दुआ या नशिस्त का एहतमाम किया गया। इस रूहानी तकरीब के अख्ताम पर मोहम्मद बिलाल सर ने क्रिसेंट कॉलेज और MS नीट अकेडमी के ज़ेर एहतमाम तरबियत हासिल करके मुलाजिमत हासिल करने वाले तलबा व तलबात के वालिदीन की इज़्ज़त अफजाई की और इन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश की और तहफ़ से नवाजा। इन्होंने कहा कि रूहानी प्रोग्रामों के ज़रिए ज़िंदगी के कीमती उसूलों को समझने हुए तालीम में आगे बढ़ना ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और माशरे में अपना मुस्बित किरदार अदा कर सकें। प्रोग्राम में शरीक ख़वातीन और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मोहम्मद बिलाल सर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तालीम और रूहानियत के इम्तराज से फ़र्द और माशरे की तरक्की मुमकिन है। इन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए ख़वातीन को मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वह न सिर्फ रूहानी बल्कि तालीमी मैदान में भी कामयाबी हो सकें। यहाँ पर पहुँचे थे। मैं तमाम आदिलाबाद के नौजवान बच्चों का भी, हमारे मोहल्ले के शांति नगर के इरफान और उनके पूरे दोस्त अहबाब उनका भी शुक्रगुजार हूँ और साथ ही वहीद साहब और उनकी उर्दू घर शादी खाने की कमेटी का भी शुक्रगुजार हूँ और साथ ही साथ चैम्पियन टेंट हाउस तीन भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपनी यहाँ पर लगाई और अपनी मेहनतें लगाकर इस प्रोग्राम को कामयाबी अता की। और मैं मशकूर हूँ मौलाना अकबरुद्दीन हुसैनी साहब का कि अपनी मसरूफियत के बावजूद यहाँ रोज़ाना ख़वातीन की रोज़ाना 2 पारे की तिलावत और तफसीर से मुस्तफ़ीद कर रहे थे और आज दुआया नशिस्त में काफ़ी ख़वातीन ने यहाँ पे शिरकत की। उन तमाम ख़वातीन का और उन तमाम मर्द हज़रात का जिन्होंने अपनी ख़वातीन को और तालिबात को यहाँ पे रवाना किया, उन सब का मैं मशकूर हूँ और तहे दिल से अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आपको अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम अता करे और साथ ही साथ ग्लोबल हाई स्कूल के तमाम स्टाफ का, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का जो वॉलंटियर्स का यहाँ पे खिदमत अंजाम दिए। TPO सुमलता ने कहा कि आवाम को हुकूमत की जानिब से LRS स्कीम से रेगुलेशन के लिए फ़राहम किए गए मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। इन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर राजू के हमरा LRS फ़ीस में रियायत पर शहर मुस्तखर के टीचर्स कॉलोनी में मुनक़िद बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। LRS के तहत पहले ही दरख्वास्तें देने वालों के कागजात की जाँच की गई है। वक्त पर अदायगी का मशवरा दिया क्योंकि LRS फ़ीस में 25% रियायत है। इस मौके पर बात करते हुए TPO सुमलता ने कहा कि हुकूमत ने 2020 में गैर क़ानूनी लेआउट और प्लाटों को रेगुलर करने के लिए दरख्वास्त देने वालों को 500 रुपये अदा करके एक मौका फराहम किया था। इन्होंने कहा कि 31 मार्च तक फ़ीस अदा करने पर 25% रियायत लागू होगी।
ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ ల్యాండ్ రెగ్యులరేషన్ స్కీము వినియోగదారులందరూ దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే 2020లో 1000 రూపీస్ కట్టి ప్రతి ఒక్కరూ చాలామంది అప్లై చేసుకున్నారు. దీంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూ పైన ఎప్పుడైతే క్లయింట్ ఏ ఇయర్లో అయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాడో దానిపైన మరియు ఇప్పుడు ఆ వచ్చిన ఫీజు అమౌంట్లో కూడా 25% రాయితీతో ప్రభుత్వం గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చింది. దీన్ని అందరూ కూడా వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఏదైతే ఇప్పుడు 1000 రూపీస్ కట్టడమే కాకుండా 10,000 కట్టి కూడా లేఅవుట్ అప్లికేషన్స్ చేసుకున్నారు. 10% ఏదైతే ఒక అన్అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్లో 10% ఆల్రెడీ సోల్డ్ అయిపోయి రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయి మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోలేదో వాళ్ళకి కూడా గవర్నమెంట్ గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చింది. వాళ్ళందరూ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ త్రూ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వచ్చి కనుక్కొని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. దీని గురించి వార్డ్ ఆఫీసర్ని అందరినీ కూడా మనము మున్సిపల్ ఆఫీస్లో కూర్చోబెట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కాల్ చేయడం జరుగుతుంది. అందరికీ కూడా దీని గురించి దీనివల్ల ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయో అవన్నిటి గురించి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. AIKS के रियासती सदर हेमंत राव ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत मुल्क के 150 करोड़ लोगों को खुराक फराहम करने वाले ज़राई शोबों को नज़रअंदाज कर रही है और किसानों के हुकूक़ को पामाल कर रही है. इतवार के रोज़ ज़िला मुस्तक़र के यादव संगम भवन में AIKS का 7वां ज़िला इजलास मुनक़िद हुआ. सबसे पहले प्रोग्राम के मेहमानों ने अंजुमन का झंडा लहराया और तहरीक के मुस्तक़बिल की सरगर्मियों पर तवील गुफ्तगू की एक मुनक़िद मीटिंग की, जिसमें AIKS ज़िला सदर और जनरल सेक्रेटरी शंकर चलुका देवी दास और निर्मल ज़िले सेक्रेटरी S मोहन मौजूद थे. AITUC के रियासती सेक्रेटरी विलास, CPI के ज़िला सेक्रेटरी प्रभाकर रेड्डी, असिस्टेंट सेक्रेटरी सिर्या देवेंद्र, कायदीन पोशट्टी, मेसराम भास्कर, केशव और दिगर ने शिरकत की. इस मौके पर खिताब करते हुए AIKS के रियासती सदर हेमंत राव ने कहा कि अगरचे पूरा मुल्क ज़राई शोबे पर मुनहसर है, हुकूमतें इस शोबे को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही है. इन्होंने कहा कि अफसोसनाक है कि GDP का 18% पैदा करने के बावजूद किसान अपने मसाइल के हल के लिए आगे नहीं आ रहे हैं. इन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ज़राई शोबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है. इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मुतारिफ़ कराए गए काले क़ानून के ख़िलाफ़ तवील जद्दोजहद के बावजूद इन्हें पसमानदा अंदाज में लागू करने की साजिशें की जा रही हैं. इन्होंने कहा कि कौमी ज़राई मार्केटिंग पॉलिसी का हिस्सा है और इसके ज़रिए किसानों को मंडी के निज़ाम से मरहूम किया जा रहा है. తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతు సంఘం వర్ధిల్లాలి. తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతులు పండించే పంటకు గిట్టుబాటు ధరలు కల్పించాలి. రైతులు పండించే పంట చట్టం చేయాలి చేయాలి చేయాలి. కనీస మద్దతు ధరల గ్యారెంటీ చట్టం చేయాలి చేయాలి. కనీస మద్దతు ధరల గ్యారెంటీ చట్టం చేయాలి అమలు చేయాలి. AIKS ఆదిలాబాద్ జిల్లా 7వ మహాసభలో రైతులకు కనీస గిట్టుబాటు ధరను రైతులకు కనీస గిట్టుబాటు ధరను మన రైతు సంఘం ఇప్పుడు మాత్రం తగ్గుతాం. రోజు రోజుకి వ్యవసాయం సంతోషంగా వ్యవసాయం చేస్తాం. ఇప్పటికి కూడా ఈ దేశంలో గంటకు ఒక రైతు చేసిన స్థితి ఇప్పటికి కూడా ఉందంటే చేస్తాం. కానీ వాళ్ళ లాభసాటిగా లేదు. ప్రధానమైనటువంటి వ్యవసాయ రైతాంగం సంఘటితంగా చూసాం. మద్దతు ధరల గ్యారెంటీ చట్టం తీసుకొస్తామని జరుగుతుంది. उत्तर भारत साबिक़ तलबा का स्कूल के बाद तमाम तलबा का इकट्ठा होना और तकरीबात का अहतमाम करना ये फितरी बात है, लेकिन आदिलाबाद में श्री सरस्वती शिशु मंदिर के साल 1992-93 बैच के साबिक़ तलबा समाजी प्रोग्राम मुनक़िद करके तलबा की मदद कर रहे हैं.
जो दूसरों को मुतासिर कर रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर मुकामी महालक्ष्मी वाड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल के 10वीं जमात के तलबा के लिए इतवार को कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तलबा को बग़ैर किसी घबराहट के सुकून से 10वीं जमात के इम्तहानात लिखने की ज़रूरत से आगाह किया गया। बाद हज़ार तलबा में मुफ्त जैमोलॉजी बॉक्स तकसीम किए गए। इसी तरह असातिज़ा को शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक़ तलबा और बार एसोसिएशन के सदर नागेश ने कहा कि प्रोग्राम इनके साबिक़ तलबा की सरपरस्ती में समाजी खिदमत करने की नीयत से शुरू किया गया है। बताया गया है कि माजी में भी फ्री मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया था। ఆహ్వానించి మమ్మల్ని మీకు సేవ చేసే చిన్నగా అటు శిశు మందిర్ పూర్వ విద్యార్థుల తరఫున మేము చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసుకొని సామాజిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈ సంవత్సరం మహాలక్ష్మివాడ ఉన్నత పాఠశాల పదవ విద్యార్థులకు ఓరియంటేషన్ క్లాసులతో పాటు సబ్జెక్ట్ నిష్ణాతులతోటి మెలకువలు ఏ రకంగా ఈ యొక్క యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో మార్కులు సాధించాలనేటువంటి విషయంలో ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించాం. అదేవిధంగా పదవ విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్లకు 10th క్లాస్లో అవసరమైనటువంటి మెటీరియల్ను కూడా సప్లై చేయడం జరిగింది. మేము ఒక సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ సర్వీస్ మోటోతోటి మరి పేద విద్యార్థులకు మా యొక్క స్కూల్లో కానీ లేకపోతే మా బ్యాచ్మెంట్లో కానీ ఎవరికైనా ఏమైనా ఆపద వచ్చినా కానీ ఆరోగ్యం సహకరించకుండా మేము అందరం కలిసి మరి డొనేషన్ ఏర్పాటు చేసుకొని వారికి సహకరించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పాఠశాల యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అదేవిధంగా ఏమైనా ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ మేము మా యొక్క 10th బ్యాచ్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా బ్లడ్ క్యాంపులతో పాటు సామాజిక కార్యక్రమాలు ముందుంటున్నాం. మరి వీటన్నిటికీ ముఖ్యంగా ఈరోజు కార్యక్రమానికి మరి ప్లాన్ చేసి మరి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్లను తీసుకొచ్చి కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా మా యొక్క బ్యాచ్ తరఫున ధన్యవాదాలు. कांग्रेस पार्टी कायदीन ने साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी से फौरी तौर पर असम्बली में किए गए अपने रिमार्क्स को वापस लेने का मुतालबा किया। कुमरम आसिफाबाद ज़िले के जैनूर मंडल मुस्तखर के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मार्केट कमेटी के चेयरमैन विश्वनाथ और सदर मुखीद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि असम्बली से खिताब बजट इजलास के दौरान साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी की जानिब से किए गए नामुनासिब तफसीरों को फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि ज़ात बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर के बारे में बेबुनियाद तबसरा करना दुरुस्त नहीं है। इन्होंने ख़बरदार किया कि इन्हें फौरी तौर पर अवामी माफ़ीनामा जारी करना पड़ेगा। दूसरी सूरत में इन्होंने ख़बरदार किया कि बदअमनी बढ़ जाएगी। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। రేవంతన్న గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, రేవంతన్న గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. ఏదైతే బడ్జెట్ సమావేశం అసెంబ్లీలో గత 2 రోజుల క్రితం మాజీ మంత్రివర్యులు జగదీష్ రెడ్డి మాట్లాడినటువంటి మాటలను వెనక్కి తీసుకోవాలి. దాన్ని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇవాళ దళిత జాతికి చెందినటువంటి స్పీకర్ పైన లేనిపోని వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇది సరికాదని మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. ఎందుకంటే కింది స్థాయి కులాస్తాలను చిన్నచూపుగా చూడడం ఇది చాలా దారుణం. అట్లా ఎవరైనా చూడాలని అనుకుంటే మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నిజంగా కూడా తెలంగాణ 4 కోట్ల ప్రజలపైన మీకు విశ్వాసం ఉండాలి. కానీ ఇవాళ అందరు జనాలు చూస్తున్నారు కదా అనుకొని ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు. ఈ మాటలు మీరు వెనకకు తగ్గి మాట్లాడవలసిన బాధ్యత మీ పైన ఉన్నది. జగదీశ్వర్ రెడ్డి ఖబర్దార్, కాంగ్రెస్ నాయకులు చూస్తూ మేము ఊరుకోలేము. ఇవాళ ప్రసాద్ అన్న ఎవరైతే మాకు స్పీకర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి
శాసనసభలో ఉన్నటువంటి స్పీకర్కు మీరు అతి త్వరలో క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఏదైతే మొన్న మాట్లాడినటువంటి మాటలను వెనుకకు తీసుకోవాలనేసి ఈ సభాముఖంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం అందరూ కూడా ఏకమై మీపైన మీ దృష్టి దహనాల కార్యక్రమాలు కూడా చేపడతాం. అతి త్వరలో మీరు మాకు వెనుకకు తగ్గి క్షమాపణ చెప్పకుంటే తెలంగాణ ప్రజలు అతి త్వరలో మీకు బుద్ధి చెప్తారనేసి తెలియజేస్తూ ఈరోజు खबरनामे के अख्ताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रमज़ान राशन की तकसीम, गरीबों के लिए एक कदम और ताउन की दरख्वास्त। आदिलाबाद में जारी समाअत कुरान बराए ख़वातीन का दुआई नशिस्त के साथ इख्तिताम। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।